اسلام آباد کے صحافی سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے معترف سینئر صوبائی وزیر شہزاد لینا میمن نے پیپلز پارٹی کے خلاف منفی خبروں کو بدقسمتی قرار دیا۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہ ہونے کا تاثر بھی رد کیا، صوبوں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی، طبی سہولیات کی فراہمی مزید بہتر کرنے کا عزم دہرایا۔ ملک سندھ کے ہیلتھ سیکٹر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سندھ میں سب کا علاج مفت ہو رہا ہے۔ وفاقی حکومت سے شاہراہوں پر توجہ دینے کا مطالبہ، تھر کے کوئلے کو توانائی بحران کا حل قرار دیا۔ اس طرح کے سیکٹرز ہیں جہاں پہ کمپٹیشن ہے ہی نہیں۔ ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے کے پاس ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جو سندھ حکومت کے بیشتر ہیلتھ سیکٹر میں جو پروجیکٹس ہیں اس کا کوئی مقابلہ ہو سکے۔ سکھر کے ہاسپٹل میں سب سے زیادہ پیشنٹ ساؤتھ پنجاب کا آ رہا ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور سارا مفت علاج ہو رہا ہے۔ آپ کے NICVD سکھر میں مفت علاج ہو رہا ہے، آپ کے SIUT میں مفت علاج ہو رہا ہے۔ پھر خیرپور میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے گمبٹ انسٹیٹیوٹ جس میں اب لیور ٹرانسپلانٹ، لنگس ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، مفت ہو رہا ہے اور سارے علاج مفت میں ہو رہے ہیں۔ کسی سے پرچی نہیں لی جا رہی، کسی کو کوئی جو ہے رسید نہیں کاٹی جا رہی، کسی کا شناختی کارڈ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ جی یہ پاکستانی بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اصل معنوں میں عوام کی خدمت۔ کراچی میں آج کل جائیں گے جو آپ سائبر نائف دیکھیں گے، سائبر نائف آپ جا کے دیکھ لیں، سائبر نائف میں کینسر کا علاج، اور دنیا کے 15 ممالک میں کینسر کا علاج ہوتا ہے سائبر نائف سے، لیکن دنیا میں صرف ایک ملک جہاں مفت میں ہوتا ہے اس کا نام ہے پاکستان۔ تو جو روڈ رستے سندھ حکومت کے کنٹرول میں ہیں وہ آپ کو سب سے بہتر ملیں گے سندھ میں۔ جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جتنی بھی کنیکٹیوٹی ہے، جتنے بھی مین آرٹریز ہیں، اندر پرابلم ہوں گے، ظاہر ہے کچھ گاؤں دیہات میں پرابلم ہوں گے، کچھ شہروں میں پرابلم ہیں، وہ ہیں، لیکن جتنی مین آرٹری سندھ حکومت کے انڈر آ رہی ہیں وہ ساری آپ کو زبردست ملیں گی۔ ہاں جو نیشنل ہائی وے جو ہمارا ہے جو کہ حیدرآباد سے سکھر ہے، اس کا حشر برا ہے کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، اور فیڈرل گورنمنٹ انفارچونیٹلی انہوں نے جس طریقے سے پورے پاکستان کا وہ باٹل نیک ہے، پورے پاکستان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ اسی رستے سے جاتی ہے، پورٹ آپ کے اس شہر میں موجود ہے، پورے پاکستان کی گڈز یہاں سے جاتی ہے، تو اس پہ جتنا دھیان دینا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیا، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کرے۔ فری میں صرف ہم کر رہے ہیں، باقی ہر جگہ پہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے تو وہ کوئلے سے بنائی جا سکتی ہے، اور کوئلہ اگر پاکستان میں کسی نے نکالا اور جو نکال رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے۔ ہزاروں میگا واٹ بجلی، آج بھی ہم ہزاروں میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں سندھ حکومت ڈال رہی ہے۔ اتنا بڑا کوئلہ سندھ سے نکل رہا ہے، اور وہ سندھ کا کوئلہ جو ہے اس سے بجلی بھی بن رہی ہے، اور ہزاروں میگا واٹ بجلی ہم لوگ اگر نیشنل گرڈ میں دے رہے ہیں تو اس سے بڑی اور ملک کی کیا خدمت کی جائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نثار کھوڑو کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کی رقم بر وقت خرچ نہ کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ کمیٹی نے محکمہ لائف سٹاک کے حساب کتاب کا جائزہ لیا۔ آئندہ اجلاس میں آڈیٹر جنرل اور سیکرٹری خزانہ طلب کر لیا۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے، بتائیے گا عاجز۔ جی دیکھیں، سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، یہاں پر PSC کے چیئرمین نثار احمد کھوڑو کی زیر صدارت۔ آج کا جو اجلاس تھا وہ محکمہ لائیو سٹاک اور فشریز کے بارے میں تھا، لیکن یہاں پہ ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ پتہ چلا ہے کہ سرکاری محکموں کے جانب تنخواہوں کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں اس کے اربوں روپے ہیں وہ لیپس ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ رقم جو ہوتی ہے، جو بچی ہوئی رقم ہوتی ہے، جو خرچ نہیں ہوتی ہے، وہ مارچ کے مہینے تک سرنڈر کرنی پڑتی ہے۔ اگر مارچ میں کسی ڈپارٹمنٹ نے یہ رقم سرنڈر نہیں کیا تو پھر جون میں 30 جون کے بعد یہ رقم لیپس ہو جاتی ہے۔ تو سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آج محکموں کو جو ہدایت کی ہے کہ جو رقم مختلف اخراجات سے بچتی ہے، خرچ نہیں ہوتی ہے، وہ رقم لیپس ہونے سے بہتر ہے سرنڈر کیا جائے محکمے کو، اور وہ سرنڈر ہوگا تو وہ جون تک خرچ ہو سکے گا، یعنی مارچ سے جون تک وہ رقم خرچ ہو سکے گی۔
यहाँ पे जो बात हुई है महकमे लाइव स्टॉक और फिशरीज की, तो 2 अरब रुपए का मामला है 2018-19 और 2019-20 के 2 सालों के दरमियान। तो इन 2 अरब रुपए के हिसाबात का यहाँ पर जायज़ा लिया गया है। जो सेक्रेटरी महकमे लाइव स्टॉक हैं काजिम जतोई और 2 जो डीजीज हैं, उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी को मुतमईन करने की कोशिश की है, लेकिन तय ये हुआ है कि डीजी जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी जो ख़जाना है, उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी में बुलाया जाएगा और उनसे बैठकर ये मसला हल किया जाएगा कि ये जो 2 अरब रुपए का मामला है महकमा लाइव स्टॉक का, इसको किस तरह हल किया जाए। और जो दीगर पैराज हैं उन पर भी बहस हुई और यहाँ पे मुख्तलफ जो उमूर थे महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज़ के, इस इजलास में तमाम महकमे के डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट के अफसरान और मुख्तलिफ इलाकों से सिंध भर से महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज़ के अफसरान जो थे वो इस इजलास में मौजूद थे। इजलास में काफ़ी तफसीली बहस किया। महकमे के 2021 के बाद पहली बार महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज़ के हिसाबात का जायज़ा लिया गया है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, और महकमे को हिदायत की गई है कि आने वाले इजलास तक अपने हिसाबात को ठीक रखे। जी, महकमे सेहत के एमसी के आला अफसरान के बड़े कारनामे सामने आ गए। अस्पताल में अद्वियात ना होने पर अफसरान ने अस्पतालों के अंदर निजी मेडिकल स्टोर बनाने की इजाज़त दे दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये महकमा सेहत के एमसी के 14 बड़े अस्पताल हैं, जिसके तमाम बड़े आला ओहदों पर बैठे अफसरान के बड़े कारनामे सामने आ गए हैं कि वहाँ पर अस्पतालों में अद्वियात मुयस्सर नहीं है और अस्पतालों में आने वाले मरीजों से तमाम अद्वियात बाहर से मंगवाई जा रही हैं। और अब तो ये सिलसिला शुरू कर दिया है अस्पताल के आला अफसरान ने और महकमा सेहत के एमसी के आला अफसरान ने, जिसमें सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इमरान समदानी की आशीर्वाद भी शामिल हो गई है कि उन्होंने सोबराज अस्पताल में, जो कि ख्वातीन का सबसे बड़ा अस्पताल है, महकमा सेहत के एमसी के मातहत चलने वाला सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर भी जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर कायम करने की इजाज़त दे दी है। जबकि इसके अलावा अब्बासी शहीद अस्पताल के इमरजेंसी के सामने और अब्बासी शहीद अस्पताल की ओपीडी के सामने भी 2 मेडिकल स्टोर जो है वो कायम कर दिए गए हैं अस्पताल की हदूद के अंदर, जो कि प्राइवेट तौर पर चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर आने वाले मरीजों को जो है वो अद्वियात फराहम की जाएंगी और उसमें परसेंटेज कोई रियायत की सहूलत भी नहीं दी जाएगी। जबकि इसके अलावा सोबराज अस्पताल में भी एक निजी मेडिकल स्टोर कायम कर दिया है। तो यूं जो है आला अफसर अहदों पर बैठे आला अफसरान के बड़े बड़े कारनामे सामने आना शुरू हो गए कि महकमा सेहत के एमसी के अस्पतालों में पहले ही बुरा हाल है और अब जो है वो मेडिकल स्टोर भी जो है वो मिली भुगत से जो है वो बांटे जा रहे हैं और निजी इदारों को दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आने वाले मरीजों को तमाम तर अद्वियात जो है वो महंगे दामों बेचने का भी हो सकता है सिलसिला शुरू हो जाए। तो इस हवाले से मेयर कराची को भी चाहिए कि वो इस हवाले से तवज्जो दें, जो कि खास तौर पर जैसे कि अब्बासी शहीद अस्पताल है, ये कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसपे मोंगो पीर, न्यू कराची, नॉर्थ नज़माबाद, लियाकताबाद के इलाकों को कवर करता है। तो वहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वहाँ पे अद्वियात ना होने की वजह से वो भी मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर होते हैं। तो इस हवाले से पूरी तौर पर तहकीकात भी कराई जाए और अस्पताल की हदूद के अंदर सरकारी जगह पर किस तरह मेडिकल स्टोर कायम किए गए, इसके हवाले से भी कोई जो है वो दस्तावेजात भी सामने नहीं लाई जा रही। तो इस हवाले से तहकीकात भी कराई जाए। जी इब्राहिम रिंद, आप साथ रहिएगा। यहाँ खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कौमी अदारा बराए सेहत अतफाल में अहम सर्जरी की तैयारी। जिस्म जुड़ी 2 माह की दोनों बहनों की सर्जरी 20 नवंबर को होगी। आगा खान अस्पताल NICVD अस्पताल से डॉक्टरों ने मुशावरत मुकम्मल कर ली, ज़रूरी टेस्ट भी करा लिए गए। प्रोफेसर नासिर सडल कहते हैं सर्जरी कामयाब होने के बहुत इम्कानात हैं। तफसीलात हासिल करेंगे इब्राहिम दिन से। इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल नौशरा फिरोज से ताल्लुक़ रखने वाली जिस्म जुड़ी 2 बच्चियों को NSC अस्पताल में दाखिल किया गया है, जिसकी सर्जरी जो है 20 नवंबर को की जाएगी। इस हवाले से NSCVD अस्पताल के कार्डिक जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो उनकी मुशावरत जारी है। जबकि इसके अलावा NSC अस्पताल में बच्चों के डॉक्टरों की जानिब से भी मशवरा किया गया। जबकि इसके अलावा आगा खान अस्पताल में बच्चों के डॉक्टरों से भी इस हवाले से मशवरा किया गया, क्योंकि ये बच्चों का जिस्म मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ है। और इस हवाले से ये दोनों बेटियाँ हैं, जिसमें 2 माह की दोनों बेटियाँ हैं और एक का नाम जो है वो नाइला है, दूसरा का नाम शुमाइला है। तो इस हवाले से नौशहरा फिरोज से ताल्लुक़ रखने वाले ये मजदूर ने अपनी दोनों बेटियों को NSC अस्पताल में दाखिल करा दिया है। इस हवाले से NSC अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 20 नवंबर
नवंबर को इन बच्चों की सर्जरी की जाएगी, जिसमें NSCVD अस्पताल के डॉक्टर और NSC अस्पताल के डॉक्टर मुश्तरका तौर पर सर्जरी करेंगे और उम्मीद है कि 80% तक ये सर्जरी कामयाब रहेगी। तो इस हवाले से आगा खान अस्पताल के डॉक्टरों से भी मशवरा किया गया है, कार्डियो अस्पताल के डॉक्टरों से भी मशवरा किया गया है और इस हवाले से मुश्तरका तौर पर जो टीम तश्कील दी जाएगी। इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया मजीद कुछ बताने से गुरेज़ा हैं, जबकि इसके अलावा जो फैमिली है इस बच्चे की वो भी इस हवाले से मीडिया पे बात करने से गुरेज़ा हैं। तो इस हवाले से दोनों का कहना है कि अस्पताल की इंतजामिया और फैमिली का कि हम दुआ गो हैं कि ये ऑपरेशन कामयाब रहे और ये अपनी बच्चियों को लेकर वापस अपने गाँव रवाना हो जाएँ। जी। DIG ड्राइविंग लाइसेंस इकबाल दारा की जानिब से मुतारिफ कराई गई ड्राइविंग लाइसेंस वैन शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ बन गई। शहरियों का इज़हार मुसर्रत ड्रिग रोड पर मौजूद लाइसेंस वैन से लाइसेंस बनवाने पहुंच गए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी ड्रिग रोड पर मौजूद हैं, तफसीलात इनसे जानते हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ड्रिग रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो ये वैन है लाइसेंस ब्रांच की यहाँ पर खड़ी हुई है ड्रिग रोड पर, और यहाँ पर जो शहरी जिनको सिस्टम यूज़ करना नहीं आता उनका लाइसेंस बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मोहसिन अली नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं बाइकें चलाता हूँ। बाइक और रक्षा? जी। अच्छा, तो ये बताएं, ये आपका लाइसेंस बनवाना है? जी, मैं लाइसेंस यहाँ से गुजर रहा था, मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, वो मैं बनवाने आया हूँ। आपको सिस्टम चलाना आता है? पता नहीं है, बस मैं यहाँ खड़ा। आपको वैसे कंप्यूटर यूज़ करना आता है, इस्तेमाल करना? नहीं, कंप्यूटर मुझे यूज़ तो आप क्या समझते हैं कि ये बेनिफिट है या नहीं है? जाहिर सी बात है, जब खड़े हैं आवाम के रिलीफ के लिए खड़े हैं और आवाम की सहूलत के लिए है, और मेरी राय ये है कि सबको बनाना चाहिए अगर ये मौका मिला है। आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है? नहीं मैम, कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता। DIG इकबाल दारा ने ये मुतारिफ कराया है गाड़ियों की सहूलत, अब वैन सहूलत होगी शहरियों के, ऐसी तरीके से रोड पे लाइसेंस बनेगा। तो आप क्या समझते हैं DIG के इस इनिशिएटिव को? मैम मैं ये समझता हूँ कि इससे आवाम की थोड़ी कोऑपरेट है, आवाम को ही फ़ायदा है कि हम लोग जाते हैं वहाँ हेड ऑफिस, तो बड़ी लाइन होती है, बड़ी मजम्मत करनी पड़ती है, पैसे दे के भी। अच्छा, ये बताया नहीं, ये तो उनके लिए जिनको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता। जी मैम, ये उनके लिए। मैम मैं तो जॉब करता हूँ सर, मैं कुछ भी नहीं, मैं दरदोजी का काम करता हूँ, जरी का काम, बुटीक में काम। आपका लाइसेंस रिन्यू है या पहला है? पहला लाइसेंस है रनिंग। जी जी सर, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि लोगों को तो अभी हम जिस तरह DIG इकबाल दारा साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो क्या समझते हैं आप, कितने लोग आ रहे हैं बनाने? मैम, शाहरा फैसल पे खड़े होने का मकसद ही यही है कि जो लोग अप एंड डाउन ट्रैवल कर रहे हैं अभी राइट नाउ शाहरा फैसल पे, इस जंक्शन पे ड्रिग रोड के ऊपर, तो गुलिस्तान जोहर से जो आ रहे हैं वो भी हमें अप्रोच कर रहे हैं कि ये नया सेटअप है हमारी मोबाइल वैन सर्विस का, तो वो पूछ रहे हैं, और पूछने के बाद अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो हम फ़ौरन उनको विदिन 5 to 10 मिनट्स लर्निंग लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, आप देख सकते हैं ये गाड़ी खड़ी हुई है 10 से 2 बजे के दरमियान, मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी होगी। जो यहाँ से गुजरता जा रहा है जिसको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, वो आसानी से आके बनवा रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 2 खड़े हुए हैं, जो एक रक्षा ड्राइवर है, बाइकें भी चलाता है, और एक जो है वो काम करता है। दोनों को कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता। DIG इकबाल दारा से जिस तरह हमने 12 बजे जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर लोगों को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है। अब एक और वैन तैयार हो रही है, जो कि दूसरे 2 वैन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी होंगी। बहुत बड़ा इनिशिएटिव किया गया है ये कि अब जो ड्राइविंग लाइसेंस का अमला है वो अब सड़कों पर मौजूद है अवाम का लाइसेंस बनवाने के लिए। जी। कराची चैम्बर के नायब सदर फैसल खलील अहमद का कहना है कि बिजली की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बिजली की कीमत रीजनल ममालिक के बराबर लानी होगी। हुकूमत को इंडस्ट्री के लिए 10 साल की पॉलिसी देना चाहिए। कराची में इंडस्ट्रियल जोन को पानी और तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। जी। भर के सनअतकार कंसर्न शो करें कि पैदावारी लागत बुलंद तरीन सतह पर, बिजली की कीमत सबसे बड़ी मुश्किलात पैदा कर रही है। यहाँ पे कराची चैम्बर के नायब सदर हैं फैसल साहब, उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ा मसला कौन सा है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी देखें, जैसे कि आपने ख़ुद बताया कि बिजली के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और मैं यही आपसे कहूँगा, देखें अगर गवर्नमेंट इसमें कोई 1 रुपये या 2 रुपये कम कर देती है या बढ़ा देती है 1 रुपये 2 रुपये, इससे चलेगा नहीं काम। आपको बिजली के एक मुनासिब कीमतें ऐसी करनी पड़ेंगी जो आपके पड़ोसी ममालिक हैं, यानी कि बांग्लादेश है, इंडिया है, और हमारे पड़ोसी ममालिक के बराबर आपको लाना पड़ेगा, ताकि एक्सपोर्टर जितने भी हैं वो जब अपना माल बनाएं तो उनका रेट ऐसा हो कि वो साथ वाले मुल्कों से मैच करे और वो तरीके से उसको एक्सपोर्ट कर सके। तो ये बिजली का मामला ये बड़ा अहम है।
اس کے علاوہ جتنے انڈسٹریل زون ہیں، اس کے علاوہ آپ جتنے یہ کمرشل علاقے ہیں، دکاندار ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں انفراسٹرکچر کا برا حال ہے. تو یہ سب چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. انڈسٹریل ایریا میں آپ کو بجلی مناسب قیمت پہ دینی پڑے گی، ان کو پانی، گیس جو ہمارے ساتھ والے ممالک ہیں ان سے کمپیئر کریں اور ان ریٹوں پر آپ یہ لے کر آئیں تاکہ ایک طریقے سے ایکسپورٹ چل سکے. جی، جیسا کہ آپ نے سنا، اہم تجاویز دی ہیں. کراچی چیمبر کی جانب سے کہا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر ایسی پالیسی مرتب کرنا ہوگی جس سے انڈسٹری چل سکے. کم سے کم 10 سالہ پالیسی دینی ہوگی. بجلی کی قیمت کو ریجنل ممالک کے برابر لانی ہوگی. ساتھ ہی جو انفراسٹرکچر کا ایشو ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. جی، سندھ کے نصاب میں خواتین کے حقوق پر مضمون شامل کرنے کی کوششیں. صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی کہتی ہیں وزیر تعلیم سے درخواست کی ہے تاکہ ہماری بچیاں اپنے حقوق کو جان سکیں. کالجز اور سکولز میں جلد خواتین کے حقوق سے متعلق آگاہی سیشنز منعقد کروائے جائیں گے. اس حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے. دیکھیں، خواتین کو با اختیار بنانے کا مشن وومن ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت آج یہاں پر جو ہے کراچی کے سرکاری کالج ہے جو کہ کھارا در میں موجود ہے، اور یہاں پر وومن یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے. اور صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی نے بطور مہمان خصوصی آج کی تقریب میں شرکت کی ہے. ان سے آپ کی بات کراتے ہیں. شاہینہ شیر علی صاحبہ، مجھے فرمائے گا، آپ کے ہاتھ میں یہ وزارت ہے، ان خواتین کے لیے کون سے پروگرامز جو ہیں وہ آپ بائے تکمیل کو پہنچانے کے تک جو ہے ایک ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج آپ اس کالج میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ان فیوچر ہماری پلاننگ ہے کہ ہم اسکول اور کالجز میں جائیں، اویئرنیس کیمپین کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان بچیوں کو جو ہے وہ ہینڈ بل دیں تاکہ وہ اپنے گھر جائیں اور اپنی والدین یا بڑی بہنوں کو دیں. دیکھیں، حق سب کا ہے، رائٹ سب کا ہے، قوانین موجود ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں ان تک میسج کیسے جائے گا. آج کل آپ کو پتہ ہے جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا ہے، ہم ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تاکہ گھر گھر جو ہے نا ہمارا پیغام پہنچے. اسکولز اور کالجز میں مختلف سیشنز جو ہیں، اویئرنیس سیشنز، اس کا بھی انعقاد جو ہے جلد ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گا تاکہ خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق جو ہے جو والدین ہیں ان تک جو ہے خصوصی طور پہ جو پیغام ہے، اویئرنیس پروگرام ہے، وہ پہنچایا جائے. جی، ویلکم بیک. کراچی میں بجلی گیس کی قلت بحران کی شکل اختیار کرنے لگی. دن رات بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس نہ ہونے سے شہری اذیت میں مبتلا. تفصیلات سید نعمان گل کی رپورٹ میں جانیے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، گیس رات میں غائب. کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری. دن میں 2 سے 3 گھنٹوں کی 4 بار لوڈ شیڈنگ نے مکینوں کی زندگی عذاب بنا دی. رات بھر گیس کی بندش نے بھی مشکلاتیں بڑھا دیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کی جانب سے کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. رات بھر گیس بند ہونے سے کھانا اور ناشتہ نہیں بن پاتے. بندہ نوکری سے آتا ہے کام کر کے، پھر اس کے بعد صبح ناشتے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے. بہت زیادہ پریشانی ہے جو حالات چل رہے ہیں آج کل کے. واقعی مشکلات تو بہت ہیں. 4 گھنٹے کر کے 3 دفعہ 4 دفعہ لائٹ جاتی ہے. بچے پریشان ہوتے ہیں، گرمی کا عالم آپ کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ گیس کی بندش چل رہی ہے. رات 10 بجے کے بعد بالکل گیس غائب ہو جاتی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ دن میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پانی کا بحران بھی پیدا ہو رہا ہے. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید نعمان گول، سٹی 21. بلدیہ عظمیٰ کراچی کی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری. محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے نشتر روڈ کے اطراف بنی دکانوں سے تجاوزات کا خاتمہ. سٹی 21 کی ٹیم کو بھی مزاحمت کا سامنا. ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی کہتے ہیں کارروائی سے قبل دکانوں کو نوٹس جاری کیے گئے. پولیس کی مدد سے ایکشن لیا گیا. ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت وہیں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے. بتائیے گا شعیب. شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی جو ہے کافی متحرک دکھائی دیتی ہے. میں اس وقت موجود ہوں نشتر روڈ پر. یہاں پر جو ہے تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. دکانوں کے باہر جو ہے ہوٹلز مالکان نے غیر ضروری طور پر جگہ گھیر لی تھی، انہیں جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی. یہ بتائیے گا کیا آج کارروائی سے قبل جو ہے ان دکانوں کو نوٹس جاری کیے گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میئر کراچی مرتضی اور ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب اور ایم سی ہیں افضل زئی صاحب کی ہدایت پہ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمار خان کی زیر نگرانی یہ کام کیا جا رہا ہے. آج دیکھیں ان کو ہم نے باقاعدہ ان کو 7 دن 10 دن کا ہم نے نوٹس دیا ان کو، اور ان کو نوٹس دینے کے بعد ان کو کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور سپریم کورٹ کا کلیئر آرڈر ہے کہ روڈ، فٹ پاتھ پہ، اوپن اسپیس پہ
किसी किस्म का कोई भी इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसका बाकायदा हम रोज़मर्रा बुनियाद पे कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ख़ासकर हम अपने इलाकों में हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसको मुकम्मल तौर पे इसको इंक्रोचमेंट को साफ़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि तमाम तर दुकानें जिन्हें जो है मस्मार किया जा रहा है, इन्हें जो है नोटिस जारी किए गए थे। पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर निपटा जा सके। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात की रोशनी में जो है ये कार्रवाई की जा रही है। इनका ये कहना है कि शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की जानिब से अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन में शजरकारी मुहिम जारी। कॉलेज की हदूद में तालिबात और असातिज़ा से 150 फलों और फूलों के पौधे लगवा दिए गए। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद जी। नवंबर का महीना है और टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है वो मुज़र असरात क्लाइमेट चेंज के, माहौलियाती तब्दीली के, जिसको भुगतना पड़ रहा है कराची के शहरियों को भी। और इस हवाले से ट्री प्लांटेशन पे फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी के फ़रोग़ की बात की जा रही है हर सतह से। इस सिलसिले में अगर नौजवान नस्ल की बात की जाए तो वो मुल्क की बागडोर उन्होंने संभाल ली है, और ख़ास तौर पर तलबा व तालिबात जिस मुहिम में शामिल कर लिए जाएँ, वो मुहिम जो है उसके कामयाबी के जो तनासुब है वो काफ़ी बेहतर दिखाई देता रहा है माजी में। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की इंतज़ामिया ने जो है वो शजरकारी अब्दुल्ला कॉलेज में जो है वो करने का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं आतिफ अली ख़ान, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, आज की ट्री प्लांटेशन से आप क्या समझ रहे हैं, क्या पैगाम जाएगा? जी बिल्कुल, एक यूथ है, यूथ ने आगे मुल्क की बागडोर संभालनी है और माशरे को कैसे एक सेहत अफ़ज़ा माशरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो पोल्यूशन है और जिसके वजह से जो है गर्मी की आपने खुद का शिद्दत बढ़ती जा रही है, और दरख्त लगाएं और उन दरख्तों की हिफाजत करें और उनको एक बड़ा दरख्त में कन्वर्ट करें। और अब्दुल्ला कॉलेज के अंदर आज हम लोगों ने जो है वो ख़ास तौर पे फलों के दरख्त लगा रहे हैं यहाँ पर, और इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पे, तो इसलिए जो है आज हमने यहाँ पे अब्दुल्ला कॉलेज में एक्टिविटी रखी। कंक्रीट का जंगल बन रहा है शहर, और ऐसे में जो है किचन गार्डनिंग और वो छोटे छोटे मकामात जो कि अवेलेबल हों, वहाँ पे ट्री प्लांटेशन की बात की जा रही है। ये अवेयरनेस बढ़ाने के हवाले से आपका टाउन क्या कर रहा है? सबसे अहम बात यही है कि इसके अंदर जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए तालीमी इदारों का हमने इंतखाब किया है, मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर ये एक्टिविटीज़ की हैं कि हमारी अपनी यूथ को सबसे पहले ये मैसेज जाए। और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हम शहर के कराची के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ख़ास तौर पर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में हमने कचरा कुंडियाँ ख़त्म करके ख़ास तौर पे उनको हम लोगों ने दरख्त लगाए हैं वहाँ पर, ताकि जो है एक माशरा जो है साफ़ सुथरा नज़र आए और उसका माहौल बेहतर हो सके। आवाम का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ना सिर्फ खुद शजरकारी के फ़रोग़ के लिए आगे बढ़ें, बल्कि जो इंतज़ामिया पौधे लगा रही है उनको तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करने के लिए उनकी देखभाल करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी जो है बढ़ोतरी के लिए काम करें, ताकि आने वाली नस्ल को अच्छा माहौल फराहम किया जा सके। जी, जामिया उर्दू अब्दुल हक कैंपस में स्पोर्ट्स वीक का आखिरी रोज़ नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा कराची हाफिज़ सिद्दीकी कहते हैं कि निसाबी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी तलबा और तालिबात के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा फरहान खान से। जी बिल्कुल, जामिया उर्दू अब्दुल हक कैंपस में जो वो 4 रोज़ा स्पोर्ट्स वीक का जो वो मेला सजाया गया था। आज जो वो उसका आज आखिरी रोज़ है। मुख्तलिफ जो वो खेलों की सरगर्मियाँ यहाँ पे रखी गई। तलबा तालबात के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों का जो वो इनकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ नाजिम जो वो इस्लामी जमीयत तलबा कराची हाफिज़ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। ये यहाँ पर जामिया उर्दू के तहत इस्लामी जमीयत तलबा के तहत जो है वो एक स्पोर्ट्स वीक मनाया जा रहा है, और इसके अंदर जो आपने सवाल किया है कि निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ कितनी ज़रूरी हैं, ये निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं कि तलबा की जो है सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए, उनके अंदर कायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए, उनके अंदर दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों को परवान चढ़ाया जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो वो लड़कों के लिए भी जो वो खेलों का एहतमाम किया गया, लड़कियों के लिए भी लिखा गया खेलों का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं सिर्फ लड़कों के लिए एहतमाम किया जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे कि दोनों के लिए जो वो मुख्तलिफ गेम्स का जो वो इनकाद किया जाए? जी बिल्कुल, इसलिए कि आप देखते हैं तालीमी इदारों के अंदर कराची का जो रेशो है वो एक तालबात जो है वो कराची के तालीमी इदारों के मेन स्टेक होल्डर हैं, तो उन्हें किसी सूरत भी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों से हटाकर अलग नहीं किया जा सकता। इस्लामी जमीयत तलबा इस डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ है। इस्लामी जमीयत तलबा कोशिश करती है कि जहाँ पर नौजवान यानी कि
तलबा को जो है मौके दिए जाएँ, उसी तरह उतने ही मौके जो है ना वो तालबात को भी फराहम किए जाएँ। कोई किरदार अदा कर सकें तलबा के साथ जो वो तलबात के लिए भी मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया था। मैं बताऊँ तो क्रिकेट के जो वो मैचेस रखे गए, फुटबॉल के जो वो मैचेस रखे गए, साथ ही साथ बैडमिंटन, शतरंज और जो वो लूडो का भी एहतमाम किया गया था। 4 रोज़ा ये स्पोर्ट्स वीक था जिसमें जो वो भरपूर शिरकत की तलबा और तालबात की जानिब से की गई। गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ जो वो निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद भी जो वो तलबा की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। जी।